डियर स्टूडेंट्स, टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स की फाइनल रिवीजन सीरीज में मैं अंजलि सारस्वत आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हूँ। आर एनवायरमेंट लेसन के सब टॉपिक्स फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन एंड इकोसिस्टम के वीडियोस मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने उनका रिवीजन अब तक ना किया हो तो प्लीज जरूर कर लें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर से लिए गए हैं। वह आंसर्स भी वही हैं जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने प्रोवाइड की है। सो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर एनवायरमेंट एंड सब टॉपिक ओजोन लेयर। Before answering the questions, you must know some facts about ozone layer. So children, यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर पिक्चर। यहाँ आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। एंड ओजोन की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। 90% ऑफ द ozone is present in the stratosphere, whereas the 10% is in the troposphere. International Day for the Preservation of the Ozone Layer is 16 September. History. In 1994, 16 September was declared as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer by United Nations General Assembly, UNGA. क्यों ये डे डिसाइड किया गया? द डे मार्क्स द साइनिंग of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer in 1987 to preserve the ozone layer and prevent further damage to it. Ozone location, जैसा मैंने आपको बताया, most ozone, about 90%, is found in the stratosphere, which begins about 10 to 16 kilometers above Earth's surface and extends up to about 50 kilometers altitude. The stratospheric region with the highest ozone concentration is commonly known as the ozone layer. Ozone layer जो stratosphere में 90% है, क्योंकि maximum concentration है, इसलिए उसको बोलते हैं ozone layer. The remaining ozone, about 10%, is found in the troposphere. Ozone depletion कैसे होता है? ओजोन की लेयर की थिनिंग कैसे हो रही है? What are the major causes? When chlorine and bromine atoms come in contact with ozone in the stratosphere, they destroy ozone molecules. जब क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम्स ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से होता है। One chlorine atom can destroy about 1 lakh ozone molecules before it is removed from the stratosphere. Ozone can be destroyed more quickly than it is naturally created. Chlorine or bromine releasing compounds contribute to ozone depletion are called ozone depleting substances. जो क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीजिंग कंपाउंड्स हैं, अभी हम उनकी बात आगे करेंगे, CFCs, उनको हम कहते हैं ODS। अब समझ लेते हैं ऑक्सीजन और ओजोन को। यहां आप देख रहे हो ऑक्सीजन का 1 एटम, दैट इज एटम ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज O3. A molecule of ozone O3 contains 3 oxygen atoms bound together. Oxygen molecule is O2, which constitute 21% of the gases in Earth atmosphere, contain 2 oxygen atoms. देखिए O2 bound together, and atom is O. Let's start. Question 1. Write the name and formula of a molecule made up of 3 atoms of oxygen. ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर क्या मॉलिक्यूल बना है? अभी अभी आपने पढ़ा, दैट इज ओजोन, which is represented by O3. Next question. What is the important function of presence of ozone in the earth atmosphere? अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए ओजोन का मेजर रोल क्या है? Ozone layer absorb the harmful ultraviolet UV radiations, means ultraviolet radiations of the sunlight. So this layer is very important for the survival and existence of life on earth. बच्चों, UV radiation से जो प्रोटेक्ट करती है हमें ओजोन लेयर, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और एक शील्ड की तरीके से काम करती है और रेडिएशंस को हम तक आने से रोकती है। चिल्ड्रन,
क्वेश्चंस लगभग वही इर्द गिर्द एक से ही होंगे, लेकिन जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा हो उसी तरीके से आपको आंसर करना है। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आंसर्स वही होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला होगा और थोड़ा आंसर का लैंग्वेज बदला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which compound are responsible for the depletion of ozone layer? ओजोन लेयर की थिनिंग के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए कौन से कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और शॉर्ट में उसे कहते हैं CFCs आर द केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसकी डिस्कशन हमने पिछली स्लाइड में किया है। Which class of chemicals is linked to the decrease in the amount of ozone in the upper atmosphere of the earth? Same question, वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दिया। फिर से इसमें पूछा है कि कौन से केमिकल्स हैं जो ओजोन की लेयर को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और शॉर्ट में CFCs। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट? ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, बट ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट एंड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। चिल्ड्रन, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत कई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं और हमारे और जो नेचर है उसके बीच में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? दैट इज एनवायरनमेंट हमें उतना फिर सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे केसेस में आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। An environmental problem caused by human activities is depletion of ozone layer। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? इफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर डिसअपियर्स कंप्लीटली, क्या होगा अगर ओजोन लेयर डिसअपियर हो जाए पूरी तरह से? पूरी तरह से अगर ओजोन हट जाती है यानी कि शील्ड हट गई, हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम डैमेज हो गया, देन ऑल द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन वुड रीच द अर्थ एंड वुड कॉज स्किन कैंसर एंड अदर एलिमेंट्स। हार्मफुल रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली अर्थ पर आएंगे और स्किन कैंसर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यूवी रेडिएशंस की, अदर एलिमेंट्स दूसरी बीमारियां या डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करें, उसका ध्यान रखें, यानी कि बैलेंस मेंटेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम। आंसर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन लैंग्वेज बदला हुआ है। आप इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आंसर इज, इफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर डिप्लेट्स देन एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन वुड रीच द सेम आंसर। दीज यूवी रेज वुड कॉज स्किन कैंसर एंड अदर एलिमेंट्स इन मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं। सेम आंसर। Next question, what happens when higher energy ultraviolet radiations act on the oxygen at the higher level of the atmosphere? देखिए, ये एक्चुअली आपको ओजोन का फॉर्मेशन बताया है कि यूवी रेज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हायर लेवल पर, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पर, तो होता क्या है, कैसे ओजोन बनती है। The high energy ultraviolet radiation UV radiation coming from the sun splits oxygen gas into the free oxygen atoms। आप अच्छे से जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, that is in the O2 form, but UV radiation is O2 को एटॉमिक स्टेट में चेंज कर देता है। So O2 under the influence of the ultraviolet radiations convert into oxygen atom। ठीक है, और ऑलरेडी O2 प्रेजेंट है। O2 प्लस ये जो अभी ऑक्सीजन एटम फॉर्म हुआ, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, O3 यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल। द फ्री ऑक्सीजन एटम्स thus produced react with an oxygen molecule to form ozone molecule।
नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर? अपर एटमॉस्फेयर में क्या फंक्शन है? बार बार क्वेश्चन का स्लाइटली लैंग्वेज बदला हुआ है, मतलब वही है, आंसर वही है. ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज टू एब्जॉर्ब most of the harmful ultraviolet radiations coming from the sun and prevent them from reaching the earth surface. इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं कि अदरवाइज क्या होगा, स्किन कैंसर एंड अदर एलिमेंट्स. चिल्ड्रन, यहाँ जितने भी मैंने आपको डिफरेंट कलर्स से मैं सेंटेंस को या वर्ड को शो कर रही हूँ, इसका मतलब है कि उसको आपको अपने आंसर शीट में हाईलाइट करना है, यानी आंसर लिखते ही अंडरलाइन करना है. बिकॉज एग्जामिनर जैसे ही आपके अंडरलाइन एरियाज को देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाता है कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को क्लियर है, और उनके लिए भी बहुत आसान होता है आपको मार्क्स अलॉट कर पाना. तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न व्हाई? ये जनरल क्वेश्चन है, फिर मैं कहूंगी कि आंसर ऑलमोस्ट वही आएगा, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा. ओजोन लेयर हमारे लिए कंसर्न क्यों है, क्यों सोच का विषय, हम इतनी बात इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं? यानी कुछ तो हमें इससे हो रहा है, कुछ हम इससे परेशान हो रहे हैं, हमें कुछ ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है. द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, UV radiations. These radiations are very harmful and cause again skin cancer and other health ailments or health problems in human beings. Moreover, ozone protects the ecosystem from damages. Ecosystem को protect कर रहा है, और इसीलिए हमें हमारा इसके साथ कंसर्न ज्यादा है. नेक्स्ट, mention one negative effect of our affluent lifestyle on the environment. जो लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट को क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, हम अपने कंफर्ट के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का ऐसा भी यूज कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर को रिटर्न में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है. ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये सारे कूलेंट्स हैं बच्चों, और दूसरी जगह यूज होते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशंस एज कूलेंट. हम कूलेंट के लिए, हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम ACs लगा रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं फूड के लिए. ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? व्हेन रिलीज्ड इनटू द एयर रिएक्ट विद ओजोन गैस प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर एंड डिस्ट्रॉय इट ग्रेजुअली. यही वे CFCs हैं जो ओजोन को डैमेज कर रहे हैं. ठीक है, तो बैलेंस कैसे बनाएंगे ये हमको तय करना पड़ेगा. इफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर डिसअपियर्स कंप्लीटली, अगर ओजोन लेयर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, देन ऑल द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन वुड रीच द अर्थ एंड अगेन स्किन कैंसर एंड अदर एलिमेंट्स रिपीटेडली. वही आंसर्स हैं. आपको एक से आंसर्स इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि बोर्ड में डिफरेंट सेट्स आते हैं, क्वेश्चन को स्लाइटली बदल देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. चिल्ड्रन देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस में जो बहुत जरूरी बात है कि आपको एक एक पार्ट को पढ़ना है सेपरेटली और उसको आंसर करना है. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ दें. एक क्वेश्चन ये हो गया, हाउ इज इट प्रोड्यूस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज नेम द सिंथेटिक केमिकल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर the drop of amount of ozone in the atmosphere. How can the use of these chemicals are reduced? Different questions हैं. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर लेते हैं, एसेंशियल फंक्शन ऑफ ओजोन. आप क्या करोगे, अगर एक पूरे पैराग्राफ फॉर्म में लिख दोगे तो वो ऐसा पढ़ने में भी इवैल्यूएटर के लिए वो इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे. तो आप अपने आंसर को, अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए
उसको अलग अलग हेड्स में कर दीजिए या पैराग्राफ चेंज करके मेंशन करिए और अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट एरियाज को। मैंने आपको एक पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लें। So ozone layer absorbs most of the harmful ultraviolet radiations from the sun of the earth। ये बार बार हम बात कर चुके हैं कि UV रेज को एब्जॉर्ब करता है। It is formed high up in the atmosphere by the action of ultraviolet radiation on oxygen gas। ऑक्सीजन गैस के साथ UV रेज O2 को एटॉमिक स्टेट में लाते हैं और ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर ये O3 बनाते हैं। कौन से, दूसरा हमारा क्वेश्चन है सिंथेटिक केमिकल्स कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर सिंथेटिक केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप ऑफ द ओजोन। ठीक है, यूजेस पूछे हैं आपको। हाउ कैन द यूज ऑफ दीज केमिकल्स, अब क्या करें हम, कैसे हम अपनी जो नीड है उसको किस तरीके से कम करें, या हम उसका कुछ रिप्लेसमेंट दे सकते हैं क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विथ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन मोर क्विकली। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करें जो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं एज कंपेयर टू CFCs। Safe disposal of old appliances such as refrigerators and freezers. Next question. Depletion of ozone in the ozone layer is a cause of our worry. देखो वही क्वेश्चन है, वहां था layer is a cause for our concern, है ना, वहां concern वर्ड दे दिया था, यहाँ worry वर्ड दे दिया। Why? Again आंसर ऑलमोस्ट वही होगा, बात आपको वही लिखनी होगी, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को बदलना होगा। डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर इज अ कॉज, वहां था कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आवर वरी, बिकॉज इफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर डिसअपियर्स कंप्लीटली देन ऑल द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन वुड रीच द अर्थ। अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो सीधे सीधे ये यूवी रेज अर्थ तक आएंगे, स्किन कैंसर कॉज करेंगे, दूसरे हेल्थ इश्यूज यानी कि अदर एलिमेंट्स इन मैन, एनिमल्स, कोई नहीं बचता है ह्यूमन बीइंग से, ऑल लिविंग लाइफ इंक्लूडिंग क्रॉप्स। सो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी और आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। And do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get regular updates। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।